علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراق کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور جرمنی کے صدر کو یوم اتحاد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے جوبا امن معاہدے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے سوڈان میں قیام امن کے سلسلے میں دوحہ کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ اور ملک میں کووڈ-19 کے نئے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے، لیکن وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس وبا کے خلاف ملنے والی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو جاری رکھا جائے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور جرمنی کے صدر جناب فرینک والٹر اسٹائنمائر کو ان کے ملک کے یوم اتحاد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے عراق اور جرمنی کے صدور کو مبارکباد کے برقی تار روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور جرمنی کی چانسلر محترمہ انجیلا میرکل کو ان کے ملک کے یوم اتحاد کے موقع پر تہنیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ وزارت بلدیات و ماحولیات کا پہلا سالانہ فورم برائے منصوبہ بندی اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ 8 دنوں تک جاری رہنے والے اس ورچوئل فورم کے آخری سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے ہدایات دیں کہ پیشہ ورانہ ملازمتوں کے لیے قطری شہریوں کو متوجہ کیا جائے تاکہ لیبر مارکیٹ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ریاست قطر نے ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے حوالے سے بین الاقوامی معاہدوں کی روح سے عائد ہونے والی قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن ایٹمی پروگراموں کو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ترقی دی جائے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران کیا۔ یہ اجلاس ایٹمی اسلحے اور اس کی پروموشن کو مکمل طور پر ختم کرنے کے عالمی دن کے موقع پر بلایا گیا تھا۔ سوڈان کی حکومت اور مسلح انقلابی گروپوں کے درمیان آج جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں ایک امن معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس تقریب میں متعدد ملکوں کے سربراہان، نمائندے اور اعلی حکام کے علاوہ افریقی یونین اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب میں قطر کی جانب سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے تقریر کرتے ہوئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، قطری حکومت اور قطری عوام کی جانب سے معاہدے کے فریقوں کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور سوڈان میں قیام امن کے سلسلے میں قطر کے تاریخی کردار پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر سوڈان کی خود مختار کونسل کے اول نائب صدر جنرل محمد حمدان دقلو نے سوڈانی حکومت اور انقلابی گروپوں کے درمیان امن معاہدے کے لیے قطر کی پہل پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کی کہ دوحہ اسی طرح سوڈان کی سپورٹ جاری رکھے۔ سوڈان کے متعلق ایک اور عالمی پلیٹ فارم پر قطر نے اپنے مستقل اور بنیادی موقف کو دہرایا ہے، جو سوڈان کی سالمیت، خود مختاری اور استحکام اور امن، آزادی اور انصاف و ترقی کی سوڈانی عوام کی امنگوں کی حمایت اور سپورٹ پر مبنی ہے۔
जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में कतर के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर अली खलफान अल मंसूरी ने सूडान के बारे में आज़ाद माहिरीन की रिपोर्ट पर बुलाए गए भरपूर इंटरैक्टिव सेशन के दौरान कतरी मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए अपील की कि सूडान के नाम को दहशतगर्दी की सपोर्ट करने वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया जाए ताकि उसको मौजूदा नाजुक तारीख़ी मरहले के दौरान पेश आने वाली रुकावटों को पार करने में आसानी हो। रियासत कतर ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि वो मसला फ़लस्तीन के हामी अपने मौक़िफ़ और पॉलिसी पर कायम है ताकि फ़लस्तीनी अवाम अपने तमाम जायज़ हुकूक दोबारा हासिल न कर लें। इन ख़यालात का इजहार जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों में कतर के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर अली खलफान अल मंसूरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तिजारत और तरक्की में कतर की नुमाइंदगी करते हुए किया और कतरी मौक़िफ़ पढ़कर सुनाया। कतर ने अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगरहार में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके में कई अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि असबाब व मुहर्रिकात या रीज़न्स एंड मोटिव्स से क़त्ए नज़र कतर हर तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात को मुस्तरद करता है। बयान में महलूकीन के अहले खाना, हुकूमत और अफ़गान अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 3 अक्टूबर 2020 को मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के 175 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स की इस बीमारी से वफात हो गई है। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि 194 अफराद मजीद सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह कोविड-19 से रिकवर होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,23,302 हो गई है। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी आने का मतलब ये नहीं है कि कतर में ये वायरस खत्म हो गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुतालबा किया कि बीमारी के खिलाफ मिलने वाली इन कामयाबियों को बरकरार रखने के लिए तमाम एहतियाती पाबंदियों पर सख्ती के साथ अमल जारी रखा जाए। मुल्क में नाफिज एहतियाती पाबंदियों पर अमल दरामद करते हुए मुतल्लिका सरकारी इदारों ने होम क्वारंटीन की शर्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इन अफराद ने उस अहदनामे या अंडरटेकिंग की वायलेशन की थी जिसमें साफ लिखा है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में उनके साथ कानूनी बाज़पुर्स की जाएगी। आलमी सतह पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप के कोविड-19 से मुतासिर होने की खबर सर-ए-फ़हरिस्त है। सदर ट्रंप इलाज के लिए व्हाइट हाउस छोड़कर एक फौजी अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक वो अपनी दफ्तरी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि सदर ट्रंप अपने सदारती इख्तियारात नायब सदर को मुंतकिल नहीं करेंगे और अपना कामकाज जारी रखेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि उनकी सेहत ठीक है। वाज़ेह है कि अस्पताल में भर्ती होने की वजह से सदर ट्रंप इलेक्शन कैंपेन में शामिल नहीं हो सकेंगे। दरियासना रिपब्लिकन सेनेटर रॉन जॉनसन सदर ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के डायरेक्टर बिल स्टेपियन और ट्रंप की साबिका एडवाइजर मोहतरमा किलियान कोनोई भी कोविड-19 का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद ये खदशात पैदा हो गए हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर वायरस ज़दा अफराद हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के मुलाजिमीन को ऑर्डर दिया गया है कि वो सदारती कम्प्लेक्स में तमाम आम मकामात पर फेस मास्क लगाएं। तुर्की के वजीर खारजा जनाब मौलूद जावेशोगलो ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाने के किसी भी फैसले के उल्टे नताइज बरामद होंगे।
आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ा इलाके नाकोरानो कराबाग से आने वाली इत्तलात में रूसी खबरसां इदारे तास का कहना है कि आज़रबाईजान की फौज ने आज शमाल और जुनूब की समतों से एक बड़ा हमला किया है और आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों के ज़ेर कब्जा इलाके में पेशकदमी की है। दरियासना आर्मीनियाई हुकूमत के एक जरिए का कहना है कि आज़रबाईजान आर्मीनिया की सरहद पर बड़ी तादाद में फौज जमा कर रहा है। इसी दौरान में ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि वो सरहदों के करीब होने वाली तमाम नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है। ईरान ने मुतालबा किया कि इलाके में जारी लड़ाई को बातचीत के जरिए फौरन खत्म किया जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील की है कि एटमी असलहे का मुकम्मल खात्मा किया जाए। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश ने जोर देकर कहा है कि इस प्लानेट पर जिंदगी की बका के लिए एटमी हथियारों का खात्मा लाजमी अम्र है। एटमी असलहे के खात्मे के लिए मनाए जाने वाले आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की साइडलाइन पर उन्होंने एटमी असलहे के मुकम्मल खात्मे में रुकने या सुस्त रवि का शिकार होने से खबरदार किया। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इराक के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी और जर्मनी के सदर को यौम इत्तेहाद के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा ने जूबा अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करते हुए सूडान में क़याम अमन के सिलसिले में दोहा की कोशिशों को उजागर किया है। और मुल्क में कोविड-19 के नए केसेस में मुसलसल कमी आ रही है, लेकिन वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि इस वबा के खिलाफ मिलने वाली कामयाबियों को बरकरार रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाए। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज बुलेटिन कल सुबह ठीक 9 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस नशरिये को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की जासिम अल हद्दाद ने।